Hello everyone, very good morning to you all. Hope you all are saved from burning your hands in last week's session because of volatility from the budget side. As we clearly told you for the safe player to keep aside your trades. Do not trade करने के लिए आपको मना किया था. So आपने देख ही लिया होगा. As budget के दिन itself Nifty moved from days high to day low and day low to days high again, which means almost Nifty moved 1,000 point in one day. You can you cannot save your stop loss in this kind of situation, whether you put as a whether you buy a put or you buy a call, and no one is god to buy the call or put on the perfect timings. So that's why I say to stay aside. साइड में रह के मार्केट को देखिए, बजट को देखिए. इफ आप न्यू ट्रेडर है तो समझिए बाजार कैसे चलता है बजट डेज में. सो दैट्स वाई ऑन दैट भी और यही वोलेटिलिटी की वजह से हमने आपको बोला था कि आप थोड़ा साइड में रहिए. एंड ऑन द लेवल साइड हमने आपको लेवल्स बताई थी कि जैसे कि 17,350 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम निफ्टी में 17,800 के लेवल्स देखेंगे. सो 18,000 तो नहीं आ पाया, बट 17,800 आपको मिल गया, विच मीन्स 500 पॉइंट आपको नीचे के साइड से फ्रॉम लोअर साइड यू गॉट 500 पॉइंट्स. एंड ऑन बैंक निफ्टी साइड वी टोल्ड यू क्लियरली टू ट्रेड इन अ बैंक निफ्टी रादर दैन अ निफ्टी बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी. सो यू ऑल सॉ कि जहां निफ्टी गिरा था, जितना निफ्टी गिरा था उतना बैंक निफ्टी नहीं गिरा था. बैंक निफ्टी में मूवमेंट जो था वो नो डाउट वोलेटाइल ही था, बट थोड़ा आपके हिसाब से जैसा हम देखते हैं इधर डिरेक्शनल मूव था. इफ इट्स अ डाउन सो डाउन, और इफ इट्स अप ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही रहता था. So both level work perfectly on Nifty and Bank Nifty. On the stock specific, on the sector specific, we informed you about infra sector, we informed you about housing sector, energy sector and automobile sector. As you except automobile sector, हमने सारे ही सेक्टर में बाकी सारे जो हाउसिंग सेक्टर था, इंफ्रा सेक्टर था, रियल इस्टेट सेक्टर था जिसके अंदर जो सरकार सभी को घर देना चाहती है, एंड एनर्जी सेक्टर विच इज गो ग्रीन, that all sector got a huge allocation from the government side on the budget side, but we didn't saw any new inflow from the government side in the automobile sector. That's why that sector gone deemed, मतलब वो वहीं के वहीं रह गया, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई. on the मूवमेंट स्टॉक्स ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में थी, बट ऑन द बिहाफ ऑफ उनके ऑटोमोबाइल्स के सेल्स नंबर भी आए थे ऑन द 1st of Feb. So that's why they moved on that behalf, not on the budgeted behalf. But on the stock specific, I told you regarding L&T, it's a budget favorite stocks. If you traded in the L&T, so you almost got 150 points or nearly 7 to 8%. On the side of HDFC, that there also you got 6%, which means almost 150 points ka rally. We can consider all the stocks which I have given. Maruti you can consider 8,350 to 88,000, which means 8,800, almost 500 points. There also we got 6%. So if SCL take also one more shot, SCL take from 1090, which means almost 1100 to 1180 levels, which means almost 8%. यहाँ पे जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे उसके अंदर आपको सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 to 8% का रिटर्न मिला है. इफ यू हैव ट्रेडेड इन फ्यूचर, सो यू गॉट ईच एंड एवरी ट्रेड एट यू कैन से 30,000 50,000 लेवल्स. एंड कैश में आपको 5 to 7% का रिटर्न, जो कि बैंक भी नहीं लेती है, वो हमने आपको वीकली आउटलुक के स्टॉक्स में दिया है. दिस इज ऑल अबाउट वीकली आउटलुक ऑफ लास्ट वीक एंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी टोल्ड एंड समरी ऑफ लास्ट वीक. सो योर फेवरेट क्वेश्चन वन मोर टाइम, फॉर दैट यू आर हियर, विच मीन्स आप इसी के लिए यहाँ है. व्हाट्स नेक्स्ट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द व्हाट्स नेक्स्ट. सो ऑन द नेक्स्ट वीक फ्रंट, ऑन द नेक्स्ट मंथ फ्रंट, on the next quarter front, this is the hint for you that bears are coming. Bears are coming because why? Data of many sectors of many large cap stocks is not supporting to the bulls, which means HDFC Bank, HDFC Limited, you can say ICICI Bank, you can say SBI, on the all the banking fronts, HDFC Limited, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, all the stocks had got weakened. Peers are active, they are weakening the stocks and they'll come. But the thing is, here's the twist. Thing is, अगर कोई चीज़ लो में है तो आप उसको बेचना चाहोगे? आप नहीं बेचोगे. आप कब बेचोगे? आप तभी बेचोगे जब आपको थोड़ा ऊपर का भाव मिले. एज सिंपल एज दैट. अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, अगर वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, आपको पता है 80 to 100 आ चुका है, और आपको पता है कि वो 100 to 150 भी जाएगा,
बट व्हेन यू विल बाय, आप ये सोचोगे कि थोड़ा 90 तक मुझे मिल जाए तो मैं बाय करूंगा। सेम विल हैपन विद बियर्स। उनको निफ्टी 17,500 मिल रही है, उनको निफ्टी 16,800 दिखती है, उनको निफ्टी 16,400 भी दिखती है, बट वो क्या अभी बेचेंगे? नहीं। दे विल गेट निफ्टी सम बिट ऑफ अपसाइड, विच मीन 17,800 तक निफ्टी को जाना चाहिए, और वहां से फिर हम एक बेयर साइड का डाउन मूव देखेंगे। सो यू गॉट माई हिंट, एंड आई एम नॉट हियर टू गिव अ हिंट, आई विल गिव यू द क्लियर डायरेक्शन। निफ्टी में दिस वीक तेजी है, बट फॉर द मंथ आफ्टर दिस फेब्रुआरी सीरीज विल सी सम काइंड ऑफ करेक्शन इन द निफ्टी। दिस इज क्लियर वर्ड्स। आई वॉन्ट टू गेट अ रॉन्ग, मैं गलत होना चाहता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू रूइन anyone's investment. I also want to get wrong on this side, but I'm telling you what I'm seeing, what data suggesting to me to told you. मैं आपको वही बता रहा हूँ जो डेटा मुझे कहने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके साथ ब्लफ नहीं कर सकता, मैं आपको अभी ऊपर बोल के बाद में नीचे नहीं बोल सकता। मैं आपको क्लियर व्यू देता हूँ। मुझे निफ्टी नीचे दिख रही है, बट दिस वीक में निफ्टी ऊपर रहेगी। तो अगर आपको आपका स्टॉक्स ऊपर के भाव में मिलता है, अपर साइड में मिलता है, तो थोड़ा एग्जिट कर लेना चाहिए, आपका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट व्यूज। Let me give you the levels. So on the Nifty's front, currently Nifty is trading around 17,500, 10-20 प्लस माइनस आप कर लीजिए। 17,500 से एक पिवट लेवल है जहां पर मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट करके रखा है कि 17,630 और 620 एक पिवट लेवल है। बुल्स एंड बेयर्स विल फाइट फॉर दिस लेवल। 17,600 के लिए बहुत फाइट चलने वाला है बुल्स और बेयर्स का। 17,600 के ऊपर निफ्टी ऊपर ही रहेगा, और 17,800 के ऊपर एक बार निकल जाता है तो फिर हम अपसाइड में रैली देखेंगे 18,000 के करीब और 18,100 के करीब। बट अगर 17,600 क्रॉस नहीं होता है सो हम अपसाइड भी नहीं देखेंगे, हम सीधा डाउन साइड ही देखेंगे। और डाउन साइड फॉर दिस वीक नॉट एक्सपेक्टिंग डाउन साइड, और अगर जाता भी है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, विच मीन्स अगर डाउन साइड में मैं देख रहा हूँ 17,200, अगर आपको 17,200 पर निफ्टी मिलती है दिस वीक, सो यू हैव टू बाय दैट निफ्टी with a stop loss of only 100 points. So 100 points which means कि आपका 5,000 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, और आपको टारगेट जो है वो ऊपर साइड में 600 पॉइंट्स के मिलेंगे, which means almost 30,000. So favorable risk reward, 5,000 रुपीज लॉस, 30,000 रुपीज प्रॉफिट, which means 1:6. This is the favorable. आप ये ट्रेड ले सकते हैं। So this is about Nifty's level. अपर साइड 17,800, लोअर साइड 17,200, पिवट पॉइंट इज 17,600. 17,600 के ऊपर 17,800, 18,100, 17,600 के नीचे 17,200, 17,100 फॉर दिस वीक। दिस लेवल्स आर बिलोंग टू दिस वीक। सो ये लेवल्स को इसी वीक में ट्रेड करना है। अगर मीनवाइल कुछ भी ऊपर नीचे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है तो हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं, वहां पर आप लाइव अपडेट मैं आपको दे ही दूंगा। ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इवन दो कोटक बैंक, सारे ही बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर इज नॉट गुड। They are going upside, as I'm giving you an example, 1,930 rupees. This is the biggest resistance for Kotak Bank. आप कभी भी कोटक बैंक को 1930-40 तक देखोगे, उसके बाद कोटक बैंक फिर से 50 रुपए नीचे, 100 रुपए नीचे आता है। Which means what? Which means स्टॉक्स में सेलिंग जो है उस लेवल से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सेम एज यू कैन कंसिडर एज 15 इन एचडीएफसी बैंक एज अ 1530 लेवल। 1530, 1520 से फिर से एचडीएफसी बैंक में सेलिंग आती है, जो कि एक रेंज बाउंड होती है, एज इट्स अ हैवी वेट, तो उसमें ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती है, विच मीन्स वो एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता है, बट सेलिंग उसमें भी है। ऑन द आईसीआईसीआई बैंक फ्रंट आप देखोगे 815, 825 के लेवल के बीच में आईसीआईसीआई बैंक में भी सेलिंग आती है, जो कि नियर अराउंड 780 और 790 के करीब में रुक जाती है, विच मीन्स वॉट, दैट बियर्स आर एक्टिव एंड बुल्स आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस लेवल्स, विच मीन्स कि जो भी हैवी वेट्स है बैंक निफ्टी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में अपसाइड जो है वो भी मिनिमम हो जाता है। बैंक निफ्टी में अपसाइड भी जो है वो मिनिमम हो जाता है, एंड द रेंज बिकम अ वेरी वेरी नैरो। 1000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में कहीं मायने नहीं रखता, तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का ही मूव होना है, ये ऐसा दिख रहा है। बट इधर साइड कहीं भी ब्रेकआउट आता है सो हम जो मूव्स है वो वाइल्डर होते देखेंगे, और वोलेटिलिटी इट्स गोइंग टू बी ऑन इट्स पीक। आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगाओगे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इफ यू सो होगा तो होने दीजिए, डजंट मैटर, बट स्टॉप लॉस को स्किप नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। कीप योर रिस्क रिवॉर्ड इन फेवर, मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए और ट्रेड कीजिए। आपको रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलेंगे, जैसे आपका स्टॉप लॉस होगा आपको रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलेंगे। आप ट्रेड लोगे आपको 5 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, विच मीन्स
वोलेटिलिटी आपका एनिमी है तो आपका फ्रेंड भी बन सकता है, तो आपको डिसाइड करना है। आप अगर आप ट्रेंड के खिलाफ हो तो आप जल्दी निकल जाइए, आप ट्रेंड के साथ हो तो आप थोड़ा आपके प्रॉफिट्स को पुश कीजिए। सो बैंक निफ्टी के लेवल्स आते हैं ऑन द अपर साइड 39,200 टू 39,400। दिस इज द अगेन रेजिस्टेंस लेवल एज आई सेड कि ऑन द परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि जब भी मैं ये सारे लेवल्स कैलकुलेट करता हूँ कि 1930 पर कोटक, 1530 पर एचडीएफसी बैंक, 820 पर आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे जो है यहाँ रेजिस्टेंस लेते हैं, तो वो रेजिस्टेंस कहाँ पर कैलकुलेट होगा? सो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा 39,400 टू 200 के लेवल में बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेगा। एंड ऑन द डाउन साइड 1490 ऑन एचडीएफसी बैंक, 1850 ऑन द कोटक बैंक, 780 ऑन आईसीआईसीआई बैंक, ये सब डाउन साइड में सपोर्ट्स आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी का डाउन साइड का सपोर्ट आ जाता है 38,400 के करीब। सो ऑन द ब्रॉडर रेंज एज आई सेड कि 1000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी पर रहेगा, सो विच मीन्स 39,400 ऑन अपर साइड, 38,400 ऑन डाउन साइड। करंटली बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 39,000, सो यू कैन 39,000 और 38,900 800 के लेवल्स में। सो you can make your trade like this. if bank nifty goes above 39,200 then आप buy side में जा सकते हो, and if bank nifty goes below 38,400 then you can go for a sell side. otherwise on the in meanwhile आप अगर अपने हाथ जलाओगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड होंगे और जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आप 50-20 पॉइंट्स में निकल जाते हो, then it's good for you because volatility will help you in this kind of things. बट इफ अगर आप लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो, तो अभी ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं है बैंक निफ्टी में। इधर साइड जो ब्रेकआउट आएगा उसके बाद में आपको ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी में क्लियर मिलेगा। सो ऑल क्लियर। 17,000 ऑन द निफ्टीज फ्रंट, 17,800 इज अपर साइड, 17,200 इज डाउन साइड। ऑन द बैंक निफ्टीज फ्रंट 39,400 इज अपर साइड, 38,400 इज डाउन साइड। सो 17,800 से 17,200 निफ्टी का लेवल है, 39,400 से 38,400 बैंक निफ्टी का लेवल है। This is all about Nifty and Bank Nifty and overview market or overall market का overview. So now what? We have to give the sector, we have to trade to the sectors too. So on the sector front, Bank Nifty I have already informed you that it's a sideways trend. So आप उसमें ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा। You have to focus on metal sector. मेटल में एक बहुत ही अच्छी रैली दिख रही है। DXY जो डॉलर इंडेक्स होता है वो भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है, विच मीन्स पॉजिटिव साइन फॉर द मेटल इंडेक्स। सो टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, VEDL, ये सारे जो स्क्रिप्ट्स है ये आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेंगे, और जब भी कोई डीप आता है तो आपको इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए और इसमें ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सो ऑन द बुलिश साइड यू कैन ट्रेड मेटल्स, ऑन द बुलिश साइड यू कैन ऑल्सो ट्रेड IT, बिकॉज IT में जो एक स्विंग लो बना था उसके बाद में एक 5 से 6% का अपमूव अभी भी मुझे मेटल IT इंडेक्स में दिख रहा है। सो IT एंड मेटल बोथ आर ऑन द बुलिश साइड and bank nifty is on sideways side. Automobiles is also on sideways side. On the bearish side I'm still bearish on pharma sector, or you can now consider as a PSU sector because now budget is over, all the stocks will cool down some bit and थोड़ा बहुत उसमें bearishness रहेगा, but ओवरऑल व्यू मार्केट का दिस वीक के लिए अप है, आप इसमें अप साइड में ट्रेड कर सकते हो। मैंने ओवरव्यू आपको मंथ का भी दे दिया है, अगले मंथ का भी दे दिया है, आप इस वीडियो से पूरा महीने का एनालिसिस भी कर सकते हो। सो ओवरऑल व्यू मैंने आपको दिया है कि महीने भर में मंदी आ सकती है और ये हफ्ते के लिए आपको तेजी करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड द सेक्टर्स। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द स्टॉक्स। ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट योर फोकस शुड बी ऑन अनलॉकिंग थीम। एवरीवन इज फॉरगेटिंग अबाउट अनलॉकिंग थीम बिकॉज ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन चला गया, हो गया, बट गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए हैं ऑन बिकॉज ऑफ दैट जो अनलॉकिंग थीम के जो स्टॉक्स है, लाइक यू कैन से होटल इंडस्ट्रीज, ट्रैवलिंग इन टूरिज्म इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्री के स्टॉक्स अभी भी डंपर हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन होटल इंडस्ट्री स्टॉक्स। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन SBI as I am on sideways on the bank nifty. SBI has posted very good numbers, but what on the chart front you will get SBI has made double top. So double top का जो inversion जो reaction आएगा वो डाउन साइड में आएगा, and if you see that रिजल्ट के पहले जो मूव आया था उसमें SBI has almost ran from 480 to 540, which means कि आपको 10 to 12% का मूव ऑलरेडी मिल चुका है। इफ यू कैन शॉर्ट देन यू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। आप शॉर्ट कर सकते हो SBI,
with the proper stop loss, with the strict stop loss. This is not any suggestion, this is my study, I'm just sharing with you. We are not responsible for any profit and loss if you do on our study. So on the stock specific front, focus on SBI, focus should be on Inox, your focus should be on IEH Hotel Industries, and your focus should be on metals, Tata Steel and JSW Steel. These 5 stocks you should have to focus and trade in that stocks. You will get easily 2 to 3%. That's all for the week. Do not forget to like, subscribe and share our channel. Plan, invest, gain with Stake Planner. Thank you.